Hello guys, so I'm back. I'm back with you on another lecture. I'll be talking about one of the most important elements of English language, of English grammar, that is adjective. एक बार आगे बढ़ाने से पहले मैं वापस एक बार रिकैप कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ाई थी और क्या क्या चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहले तो we talked about how important business communication is. We talked about how important English is and what is the entire great phenomena of English language. We studied about that as well. Today right now we'll be talking about different elements. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नाउन कंप्लीट किए थे. नाउन के डिफरेंट टाइप्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन. बाय द वे दीज आर नॉट द ओनली 3 नाउन्स अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम हैं, काफ़ी सारे नाउन हैं. तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग स्टडी करेंगे. वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि दैट इज़ नॉट द ओनली elements in the noun part. Now we'll talk about फिर हमने प्रोनाउंस पढ़े थे, प्रोनाउंस भी पढ़े थे, और अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव मैम? नाउ लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दैट. एडजेक्टिव इज a describing word. What is adjective? Adjective is explaining or defining a quality of it, or basically a state of being a noun. When you're talking about a feeling or emotion, see, right now I'm standing in front of you. I'm wearing a blue kurti. I'm standing in front of you. I'm talking to you. I'm fluent. I'm not, मतलब ये समझ गया तो मुझसे बात आप लोग मेरे से देख रहे हो, आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या हूँ. मुझे देख के you will be able to understand what I'm, but you will not be, one thing that you will not be able to understand is what I'm feeling. Okay, तो adjective basically ऐसा समझ लो, दिमाग में ये डाल दो, something that cannot be seen, that cannot be touched. You are not, you can touch, you cannot touch or you cannot touch or see what I'm feeling. Like right now I'm standing here, what do you think I'm feeling? You can take a guess. I will not be able to hear it, unfortunately, but see, are not understanding the state of the mental state, the physical state is nothing but what adjective is. Adjective मतलब एडजेक्टिव ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि अभी जैसे मैं खड़ी, मैंने आपको बताया हाउ एम आई फीलिंग, आई एम फीलिंग हंग्री. तो हंग्री, दिस इज अ स्टेट that I am having, that you will not be able to understand because it is a feeling or an emotion or a state of a well-being, unwell-being. तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है that adjective is like it, ये इंटरेस्ट लाता है. ये आपको पहले तो आपकी इमोशन के बारे में बताता है, जैसे थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, things like anger, things like being furious, state of being furious, yeah, being funny, being fast. These are things that cannot be seen by you. So the things that cannot be seen or cannot be felt by you is called as adjectives. Adjectives basically क्या करता है, थोड़ा सा कैसे बोल सकते, सेंटेंस का वेटेज बढ़ाता है, सेंटेंस को इंटरेस्टिंग करता है. The entire purpose of adjective is to how to put it in a ये way, how to put it in an interesting way. हाँ, it tries to pique the interest of the readers. I'll give you an example. आप मुझे बताना if it does make it, if it does change. जैसे hold on. This is a book. Okay, this is, ये हमारा पहला सेंटेंस है, this is a book. Now I'll say this is a very funny book. वेरी फनी या फनी जो मैंने वर्ड यूज कर दिया, इसके कारण क्या हो गया, पहले तो डिस्क्राइबिंग है. फनी ऑल्सो कैनॉट बी सीन और फेल्ट, ऑल्सो कैनॉट बी सीन और टच्ड. ये बताने के बाद में आपका सडनली इंटरेस्ट बढ़ गया उस पर्टिकुलर बुक में. समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज ट्राइंग टू पीक द इंटरेस्ट ऑफ योर रीडर. ट्राइंग, सी, कम्युनिकेशन में या स्पोकन में या कोई भी चीज में ये चीज समझ लेना, या रिटन में, see, spoken में तो भी we can make sure that the interest of the speaker is piqued, interest of the listener is piqued, पर writing में it becomes very difficult. हम लोग जैसे इसलिए most of the novels that we read are not properly read and then thrown it away. Okay, मतलब मेरे भी ऐसे, मेरे I have a lot of books in my home. बहुत सारे ऐसे मेरे घर पे बुक्स पड़े हुए हैं जिसका क्या होता है, आधी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ and then I मतलब throw it away. क्यों? Because the writer isn't able to pique the interest, pique my interest. तो एडजेक्टिव यही काम करती है. एडजेक्टिव्स राइटर के इंटरेस्ट को पिक करने की कोशिश करती है, आपके बात, आपके कैसे बोल सकते हैं,
making your writing more specific and more impactful, because at the end of the day communication has to be impactful. If it is not impactful, I don't think it needs to be discussed. I don't think it's important to discuss anything else than that. Let's just read the definition and move on ahead. Adjective. Adjectives are words that describe the quality or the state of being of pronouns. Words that describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a lot more interesting, and a whole lot more interesting. Example: enormous, dog like, silly, yellow, fun, fast. एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ. आई हैव अ केक. ये बोलने के बाद ओके अश्विनी मैम के पास केक है, ठीक है. आई हैव एन एनॉर्मस केक. उसके बाद तुम लोग इमेजिन करो कोई बहुत बड़ा सा यमी सा बड़ा सा केक होगा. ओके तो वही वो एक एनॉर्मस से आपके ऊपर उस वर्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मतलब वही अगेन द सेम थिंग, द इंटरेस्ट ऑफ द राइटर इज बीइंग पीक्ड, दैट इज बीइंग पीक्ड. दैट इज व्हाई adjective is one of the most important elements in English language. Let's move on ahead to one of the another element which is also actually most important. We'll move on. मैं आपको डिस्कस करूंगी. दैट इज adjective. That is verb. Hold on. Here you go. Verb. A verb is the word that asserts something about a person or a thing. सुने थे ना बचपन में क्रिया करके मैम लोग सिखाती थी, हमारी हिंदी की मैम, क्रिया. वर्ब इज नथिंग बट द सेम थिंग. वर्ब इज क्रिया. वर्ब मतलब बेसिकली वर्ब मतलब क्या, पहले तो वर्ब बहुत सारे 2-3 टाइप्स के होते हैं, पर हम लोग वो टाइप्स नहीं पढ़ेंगे. हम लोग समझेंगे कि जब वर्ब मतलब एक पर्सन के एक्शन के बारे में बताता है, या उसके ही टेल्स यू अबाउट द पर्सन और द थिंग और समथिंग लाइक दैट, तो इस चीज़ का वर्ब, व्हेन वर्ब गिव्स यू some information, it basically gives you information about the person, and it is a very critical information. जो information मिलती है वो काफ़ी critical, काफ़ी important information है. so इसीलिए उसको verb बोलते हैं. जैसे मैंने बोला अश्विनी eats या अश्विनी studies, तो ये जो बोल दिया मैंने अश्विनी eats, अश्विनी studies, ये बोलने के बाद what happens, अश्विनी क्या कर रही है, अश्विनी का एक्शन, अश्विनी का मतलब स्टेट वो समझ में आता है. या मतलब एज यू कैन सी, कैसे बोल सकते हैं, वर्ब ना सेंटेंस का सारा इंफॉर्मेशन दे देता है. मतलब सेंटेंस में जो भी चीज़ें, मतलब इट मेक्स द सेंटेंस वर्क, इट गिव्स द सेंटेंस अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग. और हमारे सेंटेंस को मीनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. इफ़ वर्ब इज़ नॉट प्रेजेंट, द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, द सेंटेंस हैज़ टू बी इनकम्प्लीट, इट कैनॉट साउंड कंप्लीट. ओके तो वर्ब यही करता है. अब वर्ब कैन बी 3 थिंग्स. A word can be a person, what a person does or thinks, जैसे sleeping, watching, reading, walking, teaching, learning, ये सारी चीज़ें मतलब दिस इज अ स्टेट, दिस इज a state of work. यहाँ पे जब मैंने बोल दिया teaching तो I'm here, I'm walking, you guys are learning, तो ये learn की जो है ये एक्टिविटी है. when you are doing an activity that is called as verb. Second, what is done to a person, like right now I'm boring you, right? अब मैं आपको बैठ के यार यहाँ पे मैं बोर कर रही हूँ आपको, तो द स्टेट ऑफ बीइंग बोर्ड, बोर्डम, ये भी दिस इज व्हाट आई एम डूइंग टू यू, ये भी क्या है, एक टाइप का वर्ब है. लाइक बीटिंग यू, आई एम बीटिंग, अश्विनी इज बीटिंग मनीष, जैसे हो गया. तो मनीष को क्या हो रहा है, दैट इज वो बीटिंग. तो द स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, लाइक स्टेट ऑफ समथिंग दैट इज डन ऑन हिम इज ऑल्सो वर्ब. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, व्हाट अ पर्सन इज, मतलब उसकी आइडेंटिटी, मतलब उस चीज़ का कैसे बोल सकते हैं, एक डिफाइन करना. जैसे अश्विनी इज हंग्री तो यहाँ पे वही बताना कि मेरा जो स्टेट है, ये और एडजेक्टिव कहीं ना कहीं क्लैश होता है, नॉट दैट मच बट देन अगेन ये जो बोल सकते हैं, द स्टेट ऑफ समथिंग इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज वर्ब. तो मैंने बता दिया वर्ब कैन बी 3 थिंग्स. इट कैन बी व्हाट अ पर्सन डज, it can be what a person what is done to a person, and it can be what a person is. Okay, let's move on. काफ़ी टाइम हो गया ये सब डिस्कस करते, अभी हम लोग आगे पार्ट्स पे जाएंगे, which is called as adverb. Adverb, what are adverbs? Adverbs are modifiers. मैं ये भी मैंने नाम दिया इसको, ये modifiers है. modifier मतलब क्या,
मॉडिफायर मतलब बेसिकली ये सेंटेंस का महत्व बढ़ाते हैं। बाप रे ज़्यादा हिंदी होगी ये सेंटेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स आर नथिंग बट इट हेल्प्स यू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ब। एडवर्ब देखो, एडवर्ब इसका मतलब होता है ये वर्ब में ऐड होता है, जैसे नाम, एज द नेम सजेस्ट, एज द नेम स्पेसिफाइड, एडवर्ब इज नथिंग बट एडिंग टू वर्ब। ओके, हियर यू गो, गुड वर्ड प्ले तो एडवर्ब मतलब वही जब वो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे मैंने बोला कि क्या कहते हैं उसको, मतलब हम लोग, मैंने भी बोला था कि अश्विनी इज हंग्री। ओके, हंग्री वाज वर्ब। अब इसको अगर मेरे को मॉडिफाई करना है, इज वेरी बोल दिया मैंने, इफ आई से हैवीली, इफ आई से सीरियसली, या बेसिकली जब मैं वर्ड्स ऐड कर रही हूँ तो मैं उस सेंटेंस में उस चीज़ का इम्पैक्ट बढ़ा रही हूँ। हंग्री बोलेंगे हाँ ठीक है, भूख लगी मैम को, ठीक है मैम को बहुत भूख लगती है, भूख लगी मैम को। बट जब मैंने बोल दिया कि इज एक्सट्रीमली हंग्री या आई एम एक्सट्रीमली फैमिश, तो ये जो सारे वर्ड्स है जो बेसिकली इम्पैक्ट बढ़ा रहे हैं, ये क्या करता है, ये आपको बताता है, ये आपको सीवियरिटी समझाता है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स यू एक्सप्लेन द सीवियरिटी ऑफ द सेंटेंस। समझ में? तो वो सीवियरिटी समझाना ही मतलब एडवर्ब होता है। ओके, नहीं भी समझ में आएगा, हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी मच बेटर। ओके, होल्ड ऑन। ओके, adverb. Basically, adverbs are words that modify, while adjectives qualify or add the meaning of the nouns. Adverbs modify the meaning not only of the verbs but also adjectives, prepositions, conjunctions, etc. Some of the following sentences illustrate the varied use of adverbs. I'm so sorry, I'll repeat it again. The following sentence illustrate the varied use of adverbs. Small investors find it very difficult to invest wisely. अब यहाँ पे डिफिकल्ट क्या हो गया हमारा, डिफिकल्ट हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या बता रही है, एक इमोशन बता रही है, क्या बोल सकते हैं, एक स्टेट बता रहा है ऑफ बीइंग नॉट इजी। तो और यहाँ पे जो सेकेंड एडवर्ब है, मतलब जो बोल सकते हैं हम लोग मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। वर्ब हमारा यहाँ पे इन्वेस्ट है ना, क्रिया है, वो इन्वेस्ट करने का काम है। तो इन्वेस्ट को जो मॉडिफाई कर रहा है, उसको जो उसका जो वेटेज क्रिएट कर रहा है उस सेंटेंस में, उसका जो कैसे बोल सकते हैं, एग्जैजरेट करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज आर वर्ब वाइजली। तो वाइजली इज एक्टिंग एज अ मॉडिफायर एज द एडवर्ब। समझ में? तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की एडवर्ब का काम होता है टू ऐड वेटेज टू द वर्ब। Okay, here now I'll move on to the कैसे different element of our speech, that is prepositions. Prepositions. A preposition is an important part of English language. It is used to show relationship between a noun or a pronoun in a sentence and another words in a sentence. Preposition by definition is placed before noun or its equivalent to show its relationship in terms of time, place, etc. The space above the room houses the conference facility. यहाँ पे देखो यार, जब ये रिलेशन बताता है, रिलेशन किस चीज़ का, रिलेशन बताता है हमारे क्या कैसे बोल सकते हैं उसको, वर्ब का, हमारे नाउन का, हमारे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और वर्ब का। मैं बेसिकली तरीके से बता देती हूँ। व्हेन एक सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बताता है, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन अ पोडियम। तो ऑन अ पोडियम, ऑन बोलने के बाद तुम सोच रहे होगे मैम बैठी होगी या तो खड़ी होगी, या जो स्टैंडिंग बोल दिया, खड़ी बैठी तो नहीं होगी, बट आपको समझ में आ गई कि मैं पोडियम के ऊपर हूँ। ठीक है, पोडियम के ऊपर होना, ऑन होना, या आई एम अबाउट द पोडियम बोल दिया तो आपको बेसिकली मेरी पोजीशनिंग या आपको मेरी प्लेस समझ में आती है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोजीशनिंग ऑफ मी और द प्लेस ऑफ मी, एंड प्रीपोजिशन डज दैट। प्रीपोजिशन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट ऑफ द ये क्या कहते हैं, प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, प्लेस द रिलेशन ऑफ द सेंटेंस, द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सेट्रा। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या क्या कहते हैं उसको, सेकेंड फ्लोर इज अबाव, क्या कहते हैं, थर्ड फ्लोर इज अबाव द सेकेंड फ्लोर। अबाव बोलने के बाद आपको समझ में आ गया उसके
ऊपर, तो ये अबाव ये क्या कर रहा, प्लेसमेंट बता रहा कि ये है सेकंड फ्लोर है तो कहाँ है। ओके, तो ये सब प्लेसमेंट बताने का काम प्रेपोजिशन का होता है। अब प्रेपोजिशन ये हमेशा, लेट मी रिपीट दैट, एवरी टाइम इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन। ओके, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रेपोजिशन एक रिलेशन बताता है किस चीज़ का, एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस टू यूज फ्रॉम। अगेन आई रिपीट दिस एवरी टाइम एंड आई एम रिपीटिंग दिस इन द सेकेंड लेक्चर इटसेल्फ कि प्रेपोजिशंस या इंग्लिश लैंग्वेज में सभी चीज़ का रिप्लेसमेंट है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, रिपीटिंग इट अगेन अगेन। इसमें आपको हर एक वर्ड का अलग अलग रिप्लेसमेंट दिखेगा। जी हाँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वाइड लैंग्वेज है, पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है दैट द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज इज कि देर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर स्पोकन इन दिस कॉन्टिनेंट कैन नॉट मीन द सेम इन अदर कॉन्टिनेंट। ओके, this language is spoken in so many continents. Okay, these are spoken in so many continents, and the fact that this ये एक ही word यहाँ पे अलग मीन करता है, कहीं और अलग मीन करता है, and etc and whatever you can say. So the fact that it means differently, it has so many synonyms. Okay, English language में synonyms जो बोलते हैं हम लोग, समान शब्द बहुत हिंदी हो गई, सेम वर्ड्स जो सेम मीन करते हैं, बहुत सारे हैं। n number of words there are, because there are n number of words available in English language, that is why we here have n number of prepositions available as well. मतलब एक जो above बताने के लिए भी आपको बहुत सारे prepositions available रहेंगे, because that is the beauty of English language. Moving on, as I told you, there are hardly any rules of governing the use of prepositions. Some people feel that it is inelegant to put them at the end of the sentence. Let's just say it's not just inelegant, it's grammatically incorrect if you're asking me. Yes, I'm right. Grammatically incorrect hota hai, it is incorrect to end a sentence with a preposition. If you are unknown to this is very important. पर ये समझना ज़रूरी है कि ये वर्ड यहाँ पे लगता ही नहीं है या लगना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूल होता है, ये सब रूल नहीं है, ये सब कोई रूल अवेलेबल नहीं है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि दैट as I explained you that there are different prepositions available, और इस सब चीज़ों का कैसे बोल सकते हैं, अलग अलग ये अवेलेबल है, क्या कहते हैं उसको, सिनोनिम्स अवेलेबल, अलग अलग रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है। हाँ, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, you'll get ton of replacements in an English language for words in an English language. It is just so wide, the language is so wide, the range of that language is so wide, and I want you all to understand and achieve and adapt to the depth of it, to आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना वाइड है, उसका रेंज आपको इंक्रीज करना ज़रूरी है। I want you are the students, you're my students, and I want you to understand that you are the students of VPA, and मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा VPA का है वो इस सीवियरिटी को समझे और इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी ले, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एंड इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ योर लैंग्वेज, ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज इज never a wrong thing. It's a beautiful, it's a great thing, it's so powerful. It's actually the state of being powerful. हमको वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है that आप लोगों ने अगर एक कोई भी वर्ड, पहले तो समझ लो अच्छे से, मतलब बांध लो उसको अपने सर में, if you use any word incorrectly, it will not only affect you right now but in the future itself. ओके, कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट यही है कि आपको ये जो तरीका अभी सीखना ज़रूरी है। ओके, एज आई टोल्ड यू देर आर डिफरेंट these are the way how it is supposed to be spoken. Okay, you cannot speak it incorrectly, because if you make errors, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, I want the students of VPA to attain accuracy. Okay, तो accuracy लाने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप वो चीज़ को गलत तरीके से करोगे, if you are not putting it accurately, what will happen, क्या होगा मैम, गलत लिख दिया तो उसका मीनिंग गलत डिलीवर होगा, और अगर मीनिंग गलत डिलीवर होगा तो बेटा नौकरी तो छूटेगी ना, कि नहीं छूटेगी। अगर जैसे अभी आप लोग बात कर रहे हैं, आपने अबाव की जगह बिलो यूज़ कर लिया, ठीक है, जैसे मैम प्लीज़ कम अबाव द सेकेंड फ्लोर, आपको यूज़ करना था बिलो और आपने अबाव यूज़ कर दिया। मैं सेकेंड फ्लोर में मैं वेट कर रही हूँ, थर्ड सेकेंड फ्लोर के ऊपर वेट कर रही हूँ,
और आप हो फर्स्ट फ्लोर पे, तो डू यू रियलाइज हाउ just using a simple small preposition incorrectly can make you lose your job, and that's not something that where we can take, मतलब उसको इतना lightly नहीं ले सकते. That's not how we should take it so lightly. That's something that should be understood very clearly. Okay, हमको हर एक चीज़ का प्रॉपर यूज़ करना ज़रूरी है, और ये मैं यही सारी चीज़ सिखा रही हूँ, टू यूजिंग ऑल द एलिमेंट्स प्रॉपरली. ओके, देन नाउ इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कंजक्शंस के ऊपर. कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस आर बेसिकली दीज आर लिंक वर्ब्स. मैं एक्चुअली इसको एक नाम बता देती हूँ. कंजक्शंस क्या है तो उसको दिमाग में लगा दो, लिंक वर्ड्स. जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, अश्विनी 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 हर सेंटेंस में, जैसे मैं आपको वो एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ. अश्विनी इज अ गर्ल, अश्विनी इज गोइंग टू गो टू गार्डन, अश्विनी इज गोइंग टू ब्रिंग वेजिटेबल्स. हर बार ये 3 अलग अलग सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा के उसको अलग 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 बार बोलना isn't right, isn't comfortable, isn't how you say natural. हम लोग को इसका कंफर्ट करना है, इसको हमको कंफर्ट करना है. इसको कंफर्टेबल कैसे करेंगे हम लोग? तो कंफर्टेबल ऐसे करेंगे कि वी विल ट्राई टू क्या कैसे बोल सकते हैं, रिमूव द फुल स्टॉप. पहले तो हर सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगा था. अश्विन इज अ गर्ल, अश्विन इज गोइंग टू गो टू गार्डन, अश्विन इज गोइंग टू ब्रिंग वेजिटेबल्स. ये सब के वर्ड्स के बाद में एक फुल स्टॉप, इसको निकाल के फेंक देंगे. ठीक है, निकाले दोनों फुल स्टॉप, फेंक दिए. फिर अश्विनी को भी निकाल के फेंक देंगे. अश्विनी को नहीं फेंकेंगे अश्विनी वर्ड को फेंकेंगे. ओके, नहीं तो बस हो गया, अश्विनी के वर्ड को निकाल के फेंक दिया. अब इन दोनों सेंटेंसेस, ये जो दोनों सेंटेंसेस है जिसके अंदर फुल स्टॉप था, इनके बीच के वर्ड्स में हमको ये बीच में हमको फुल स्टॉप और नेम को, जो हमारा सब्जेक्ट था अश्विनी विच वाज अ सब्जेक्ट, जिसको हम लोगों ने रिप्लेस किया, रिप्लेस करना है हमको. रिप्लेस कैसे करेंगे? इसके जगह पे कंजक्शन लगा के. कंजक्शन क्या होता है? लिंक वर्ड्स. इट इज बेसिकली हेल्पिंग यू लिंक वन सेंटेंस टू अनदर. तो यहाँ पे मैं अश्विनी इज अ गर्ल हु इज गोइंग टू गो टू द गार्डन, हु इज एंड ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, एंड और क्या लगा, क्या यूज किया था मैंने, हु. ये दोनों हमारे कंजक्शंस हैं. समझ में आया क्या बोली मैंने? बेसिकली ये आपके क्या कहते हैं, कांस्टेंट यूज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट यूज ऑफ सब्जेक्ट, कांस्टेंट यूज ऑफ हाउ टू से, कांस्टेंट यूज ऑफ सब्जेक्ट, कांस्टेंट यूज ऑफ फुल स्टॉप, इसको एलिमिनेट करते, कॉमा, ये सारी चीजें, मतलब कंजक्शंस ये आपका काम इजी करवाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं. हमारा मतलब इवन दो इट फोकसेस ऑन, कैसे बोल सकते हैं, it focuses on complexing the sentence, if I say, if that's the word, I don't know. वो basically sentence को complex तो करता है. अब मैंने basically यहाँ पे 3 अलग अलग simple sentences use किए थे, जिसमें मैंने and और who लगा के मैंने sentence को complex ज़रूर किया, but I am making it sound smooth and natural, which is actually helping the sentence, which helps us understand the severity of the sentence better. Okay, तो अभी ऐसे बोल सकते हैं कंजक्शंस कभी कभार एक सेंटेंस में एक ही लगेंगे, 2 भी लग सकते हैं, और कभी कभार पेयर में भी लग सकते हैं. लाइक कंजक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड एज पेयर, एंड विल बी स्टडिंग हाउ. कंजक्शंस आर वर्ड that link other words, phrases or clauses together. Without the presence of conjunctions, you'd be forced to express every complex idea in a series of short, simplistic sentences. I like cooking, I like eating, I don't like washing dishes afterward. See, you are able to see full stops here. अब हमने फुल स्टॉप्स का एलिमिनेट कर दिया. आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग बट आई डोंट लाइक वॉशिंग डिशेस आफ्टरवर्ड्स. समझ में आया कैसे हमने उसको एक उसी सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर दिया, कॉम्प्लेक्स करके सिंप्लीफाई कर दिया. कंजक्शंस may also used to be used in pairs. Example, neither nor, either or, not only but also, both, etc etc. There are lots of pairs जो यूज में आते हैं, और वो सब भी ये जो चीज़ें एक यूज नहीं होता, जो पेयर में यूज होता है. पेयर में यूज होना मतलब क्या? यू कैन नॉट जस्ट यूज नाइदर, यू हैव टू यूज नॉर इन द सेंटेंस. इफ यू आर यूजिंग इट, तो अगर आप नाइदर को यूज करना चाहते हो एज ए कंजक्शन इन अ सेंटेंस, यू डेफिनेटली हैव टू यूज नॉर एज वेल. समझ में आया? तो इसी को, ये जो द सिनेरियो व्हेन यू आर यूजिंग टू डिफरेंट कंजक्शंस इन द सेम सेंटेंस as a pair is called as correlating conjunctions, correlative conjunctions. Okay, जैसे
I don't like to watch dish. I don't like to wash dishes. Dishes. I don't like to watch. I don't like to hold on. I don't like to wash dishes. I don't like to wash clothes. Neither I like to wash dishes nor I like to wash clothes. जब मैंने नाइदर और नॉर का इम्प्लीकेशन कर दिया, जब मैंने उसको इम्प्लाई करा, उसको अप्लाई करा, उसके कारण सेंटेंस ईजियर हो गया और सेंटेंस को मुझे प्रॉपर सेंस लगाने के लिए नाइदर और नॉर दोनों यूज करना पड़ा. समझ में आया? तो अंडरस्टैंडिंग दैट द सेंटेंसेस वेर यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. लेट्स मूव ऑन फर्दर. Interjections are words which are used in a sentence to express strong emotion or feeling. They may not be a part of its grammatical structure, but some common interjections are hi, alas, oh. Okay, interjections are not used in every sentences. These are these ऐसे बोल सकते हैं जब कोई when we are making sound, when we are making like oh my, oh yes, very good, the dish was very fan, great, या I'm so I got hurt on my stomach. तो हम लोग ये जो emotion explain करते हैं, ठीक है, these are basically some sounds that we make and these are used to explain an emotion. I got a hurt, my stomach is paining, alas I did it. To explain some sort of कैसे बोल सकते हैं emotion, some sort of feeling, these interjections are used. अब मैंने जैसे बताया not every sentence requires to have an interjection. Okay, interjection is basically used in the sentences where मतलब जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे लिखते हैं. अगेन इंटरजेक्शन क्या करता है, ये क्यों यूज़ करते हैं मैम हम लोग, वापस अभी आप लोग नहीं हो तो मैं ही पूछ लूँगी. तो इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन भी आपको एग्जैजरेशन में हेल्प करता है. एग्जैजरेशन में हेल्प करता है मतलब इट एक्ट्स एज इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ इट. समझ में, आपको इमोशन समझने में हेल्प करता है इंटरजेक्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर, दैट इज वॉइसेस. आई एम श्योर आप सबने वॉइसेस क्लास 10th तक के बहुत अच्छे से करे होंगे. चलो बहुत अच्छे से नहीं पर अच्छे से करे होंगे. हम लोग जानते हैं वॉइसेस क्या होती हैं, फिर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे बिकॉज वॉइसेस दिस इज नथिंग बट कैसे बोल सकते हैं एक्शन और परफॉर्मर के ऊपर रिलेशन होता है. मतलब वॉइसेस क्या करता है, वॉइसेस का क्या पर्पज है, तो वॉइसेस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ द परफॉर्मर एज वेल एज द वन इट इज बीन परफॉर्म्ड ऑन. मतलब सब्जेक्ट एंड द कैसे बोल सकते हैं एक्शन, उसके ऊपर रिफर करता है. क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट हमारा जो परफॉर्मर है और जो जिसमें परफॉर्म होता है वो चीज़ों के ऊपर जब फोकस करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वॉइसेस. लेट्स read a little and then we'll understand or we'll discuss all the examples. Voices. Voice is the term used to describe whether a verb is passive or active. There are mainly two types of voices: A, active; B, passive. At the most basic level, the active voice emphasizes the person or the agent who performs an action. In short, the actor. The passive voice emphasizes the recipient of the action or sometimes the action itself. देखो, जो हमारा वर्ब है, हमारा वर्ब जैसे है चेंज, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में सुशी चेंज द फ्लैट टायर. चेंज ये जो वर्ड है ये हमारा वर्ब है. ये वर्ब में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. चेंजेस किस में आती, सुशी में और फ्लैट टायर में. मतलब चेंजेस हमेशा सुशी और फ्लैट टायर में नहीं आते, चेंजेस आते हैं एलिमेंट्स में. यहाँ पे सुशी जो है शी वाज अ गर्ल और अ वुमन हु डोंट आई डोंट नो और अ मैन आई डोंट नो. सुशी यहाँ पे परफॉर्मर है, ये मेरे को मालूम है. Sushi is the performer and change is the action and flat tire is what is the recipient actually. Okay, तो यहाँ पे sushi और recipient, actor और the recipient, इसमें जो changes आते हैं, अगर ये मतलब इन लोग का स्विच हो जाता है तो पैसिव हो जाता है. अगर इनिशियल आपके सेंटेंस में आपको एक्टर दिख रहा है, अच्छा अभी कैसे पता करते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है, टू रियलाइजिंग दैट द एक्टिव सेंटेंस is where the actor is present in the beginning of the sentence. Like right now we will talk about this example there, which is
Sushi changed the flat tire. Sushi changed the flat tire. The tire of the flat tire was changed by Sushi. यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस है, एलिमेंट सारे सेम है, मतलब हमारे जो रेसिपिएंट और एक्टर है दोनों सेम है इन एवरी सेंटेंस, दैट इज द सुशी एंड द फ्लैट टायर. तो फ्लैट टायर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज द रेसिपिएंट. तो फ्लैट टायर और सुशी, ये पहले तो सुशी जिसने एक्टर है वो सेंटेंस के बिगनिंग में है, उससे हमको समझ में आ जाएगा इट इज द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस इज व्हेन द, कैसे बोल सकते हैं, द एक्टर इज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड द थिंग दैट इज एक्टेड अपॉन, दैट इज द रेसिपिएंट, इज इन द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस. ये सबसे बेसिक लॉ है ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉइसेस. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में द फ्लैट टायर वॉज चेंज बाय सुशी. तो सुशी ने फ्लैट टायर चेंज किया, और ये फ्लैट टायर किसने चेंज किया? फ्लैट टायर सुशी से चेंज हुआ है. ये बताना, टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट वॉइसेस आर. हम लोग वर्ब को किस तरीके से लिखते हैं, इफ इट इज रिटन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट, all these discussions, all this is what voices is all about. Okay, let's move on a little bit more. As a general rule, we should use active voice in our sentence. Such sentences are either shorter, direct and emphatic, whereas passive voice is also found more suitable while drafting legal formulation, as no identifiable subject can be mentioned. Okay, ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, समझो. देखो, एज हमने पहला सेंटेंस पढ़ के हमको एक समझ में आ गया, वी हैव अंडरस्टूड दैट usually passive active sentences are very straightforward, it are very simple and very, कैसे बोल सकते हैं, general, whereas passive are a little twisted, they are as where the, कैसे बोल सकते हैं, the recipient is focused, whereas in the active the actor is focused. तो यहाँ पे बोला हुआ है कि active sentences, he is like, if as a speaker, if as a teacher, I would suggest you to talk in active sentences or to communicate in active sentences, but there are certain concerned areas where you need to focus on talking in passive, writing in passive and communicating in passive, because passive also has its benefits. Okay, दोनों की अलग अलग बेनिफिट्स है. एक्टिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट होता है, वेरस पैसिव एक तरीके से, जब आपके पास, जैसे आपको एक्टर के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको रेसिपिएंट के ऊपर फोकस करना है सेंटेंस में, तब हम लोग उसके लिए ये यूज करते हैं क्या, पैसिव. और पैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राफ्टिंग लीगल फॉर्मुलेशंस, ड्राफ्टिंग लीगल फॉर्मुलेशंस. तो ऐसे समझ लो, इफ दैट इज द केस देन यू नीड टू गेट इट डन एज वेल, बिकॉज दैट्स व्हाट is the most important core importance of your portion, that to understand what you will be doing and understanding how legal yes documents are drafted. So most of them are drafted in passive, which we need to understand. Now let's move on a little more. Articles. Okay, आर्टिकल्स, हम लोग को पता है आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बार ऐसा बोला हुआ है दैट प्रेपोजिशंस का पार्ट होता है आर्टिकल. हमने अभी जो कुछ प्रेपोजिशंस पढ़े, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई दिस इज नॉट मेंशन इन योर, कैसे बोल सकते हैं, पोर्शन इन योर एग्जाम, इन योर CSET पोर्शंस, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल टेल यू दैट कि प्रेपोजिशंस इज आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ प्रेपोजिशंस. preposition is not a part of article, मतलब prepositions has a larger variety or larger range of क्या कैसे बोल सकते हैं, elements, larger range of words, whereas articles only have 3, that is a and the. अब a and कहाँ use करना है, I don't think I need to specify that, but I'll still let you know. a is supposed to be used before the, पहले तो ये सारी चीज़ें जो a and the है, ये सब हमारे इसके बाद लिखा जाता है. हम लोग कैसे बोल सकते हैं, नाउन के लिए नाउन के पहले लिखा जाता है, और इट कैन बी स्पेसिफिक, इट कैन बी अनस्पेसिफिक. नाउ मैं आपको ये क्या होता है वो एक्सप्लेन करने के पहले मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कराऊंगी एक्चुअल में कैसे तरीके से यूज किया जा सकता है. सबसे पहले नंबर 1, गिव मी अ हैमर. गिव मी अ हैमर, आई सेड. तो you any one of you will give me any hammer that is available in the room. Actually हमारे क्लासरूम में हैमर क्यों होगा, I'll put a more suitable example. Give me a pen.
ओके मैंने पेन बोला तो आप लोग आपके पास में, आपके डेस्क पे, आपके बेंचेस पे, whichever pen is the most accessible to you, you will give it to me and that's it. I cannot complain when you give me a red blue pen or black pen. ठीक है, अगर तुमने मुझे मार्कर पेन भी लाके दे दिया, आई कैन नॉट कंप्लेन बिकॉज डिड आई स्पेसिफाई मी यू विच काइंड ऑफ पेन आई वांट, नो. तो ए जो है इट इज अनस्पेसिफाइड आर्टिकल, वेर एज वेन आई एम यूजिंग द स्पेसिफाइड होता है, द इज स्पेसिफिक. समझ में आया? तो ए और द का यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है. मैं जानती हूँ आपको ए और एन कहाँ यूज करते वो आता है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड where usually one of I have seen usually my students have a difficulty in understanding where the and a are placed. मतलब द को कहाँ यूज करते हैं मैम और ए कहाँ पे यूज करते हैं, ए क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पे और द क्यों नहीं यूज कर सकते, तो वही मैं आपको बता रही कहाँ पे द यूज करेंगे और कहाँ पे ए यूज करेंगे. तो आर्टिकल्स में वही द इज द स्पेसिफाइड और डेफिनाइड आर्टिकल वेयर एज ए और एन इज अनस्पेसिफाइड. अब ये समझना जरूरी है कि जब मैंने आपको द बोला तो आप कोई तो भी एक पर्टिकुलर पेन है उसको पर्टिकुलरली मुझे दोगे, गिव मी द पेन, तो इट माई आईज माई फिंगर माइट बी पॉइंटेड एट अ पर्टिकुलर पेन और यू विल नो कि दैट इज द पेन दैट मैम यूज एवरीडे और मैम वही मांगेगी. समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग क्या डेफिनेट होता है और क्या इनडेफिनेट होता है वो मैंने समझा दिया. अब मैं आपको इनडेफिनेट का दूसरा एलिमेंट बताऊंगी, ए और एन. अच्छा, बचपन में हम लोगों ने वोवल्स पढ़े थे, वोवल्स ए ई आई ओ यू. तो जब हमारा जो नाउन है वो ये वोवल से शुरू होता है, इट कैन स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 5 वोवल्स एंड बाकी के रिमेनिंग जो है बी सी डी एफ एंड बाकी के सारे ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके, द लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट आर कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड ये वोवल्स. तो जो भी नाउन वोवल्स से शुरू होता है उसमें हम लोग एन लगाएंगे और जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसमें हम लोग ए लगाएंगे. आई विल रिपीट इट अगेन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. गिव मी ऑरेंज, गिव मी ए ऑरेंज, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि ऑरेंज जो है जिसके पहले हम लोग आर्टिकल लगा रहे हैं, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले लगते हैं और जिसके पहले हम लोग लगा रहे हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड ओ इज अ वोवल. रिमेंबर ए ई आई ओ, तो ओ इज अ वोवल. तो हम लोगों ने ऑरेंज बोल दिया, तो मैंने क्या बोलना चाहिए? माई सेंटेंस वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. वाई करेक्टिंग द सेंटेंस आई विल से दैट आई वॉन्ट एन ऑरेंज. डू गेट इट? और फिर एन एग या एग हो तो एन एग बिकॉज ई इज ऑल्सो वोवल. एंड देन जब हम लोग ए के तरफ होते हैं बाकी के जितने भी रिमेनिंग है ए बी सी डी एफ एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब में हम लोग ये सबसे जैसे शुरू होने वाला है स्विच ऑन ए फैन बोलूंगी मैं, एन फैन नहीं बोलूंगी. इसमें ही क्या यूज होता है? ए यूज होता है जो बाकी ये कॉन्सोनेंट्स है. विल रीड इट एंड देन विल फोकस ऑन द यूजेज पार्ट एज वेल. Definite articles is the word the. It limits the meaning of a noun to one particular thing. After a long day, the cup of tea tasted particularly good. By using the article the, we have shown that it was one specific day that was long and one specific cup of tea tasted good. Do you understand the emphasis on specific? Because यहाँ पे definite articles में हम लोग देख रहे हैं, वो चाय के बारे में बात कर रहे हैं यार, चाय वेरी इंपॉर्टेंट. चाय में वो पर्टिकुलरली वही दिन की वही पर्टिकुलर चाय बहुत अच्छी थी. Like I had a tiring day and the tea just took away my tiredness. होता है ऐसा, okay? And for some it might be coffee, but that's not what we are focusing on. We're focusing on the part the. वो एक पर्टिकुलर चाय के बारे में बात कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चाय ने ही ये कर लिया, क्या कर दिया? इट मेड द डे, इट टेस्टेड सो गुड. तो अंडरस्टैंडिंग कि ये होता है. फिर एक कॉन्सोनेंट टोन वाला पार्ट है, अभी हम लोग यूजेज पढ़ेंगे. we'll talk about the more important elements. Usage implied the manner in which the native speakers of a language use it. ठीक है? अब जैसे मैंने बताया हर एक चीज का यूज एक लॉ होता है, एक तरीका होता है. तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे इसका ये यूज करना जरूरी है. तो आपको समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पे लगाना. और आप अगेन
if you do not use it, if you do not put it in the place where it is supposed to be where it is supposed to be put, तो फिर वो grammatically incorrect हो जाएगा, and then where you get your first communicational error, which I don't want you to have, I don't want you to go through, which I don't want you to go through. Okay, again I'm repeating the same sentence. I want the students of VPA to attain accuracy, और accuracy के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये stupid grammatical mistakes को eliminate करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, understand करना कि ये वहीं पे use होता है, तो use it in the same way. Now we'll talk about something that is one of the most important topics of tenses. See, I've been teaching English for a long time. I've been teaching communication. I've been teaching business studies for a long time. I've had few students who have been, blessed in speaking their language fluently just by understanding the grammar. See, पहले तो understanding that you have studied for a long time and still unable to speak English, unable to communicate in English, is something that you need to focus on. Not today maybe, but tomorrow you'll have to. That is something that a student has to focus on. But we'll not be talking about that. We'll be talking about how tenses are so important. Tenses will help you. पहले तो हमारे ये जो पोर्शन में tenses अवेलेबल है, मैं बात कर रही हूँ tenses के बारे में, शायद मैंने बताया नहीं. Tenses is going to help you, कैसे बोल सकते हैं, speak fluently, communicate fluently, because as I told you, understanding these things will eliminate your mistakes, and that's where we focus or are focused on. We need to eliminate the mistakes. तो अब tense क्या होता है, hold on. Tense क्या होता है? Tense is a category that expresses time reference. In grammar, a set of forms taken by a verb indicate the time of the action in the relation of the time of the utterance. Is the meaning of the word. It is from the concise Oxford Dictionary. ठीक है. अब ये जो टेंस हमने पढ़ा, ये टेंस क्या होता है, टेंस का क्या इन्फ्लुएंस है, टेंस क्या इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग. टेंस ये जो होता है 3 अलग अलग टाइम फ्रेम बताता है. जैसे वक्त जो है वो 3 अलग अलग फ्रेम में आता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अभी जो हो रहा है, कल जो हो चुका और कल जो होगा, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट. तो ये समझना जरूरी है. टेंसेस आर इन दीज फॉर्म्स एंड दीज फॉर्म्स बेसिकली हेल्प यू अंडरस्टैंड, दिस बेसिकली हेल्प्स यू कैटेगराइज अ टाइम. और ये कैटेगरी जो है ये कौन से वर्ड पे इफेक्ट करता है, ऑब्वियसली वर्ब पे इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको वर्ब टेंस बोलते हैं. तो वर्ब, ये 3 वर्ब जो है ये 3 वक्त पे यूज किया जा सकता है. जैसे आई विल टेल यू, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. यहाँ पे जो 3 वर्ड्स हैं, ऐसे 3, जैसे ये एक वर्ड जो है इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं, वैसे ही अलग अलग वक्त पे भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. तो व्हेन वी आर एबल टू यूज़ वन पर्टिकुलर वर्ड इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम is nothing but tenses. Now you do not have the formulas or the formulation of tenses available in your portion, but if you understand its usage, it will be very important to you for understanding it and getting it done, so that मतलब कैसा होता है, I don't want you all to make those grammatical errors, the simple, the unnecessary errors in the language, and helping tenses, understanding tenses very nicely is going to help you get it. Okay, so जैसे मैंने बताया, the word tense comes from the Latin word tempus, जिसका मतलब होता है टाइम, वक्त. तो टेंस इसका रिलेशन तुम टाइम से ही कर लो. ओके, टेंस इसका रिलेशन हम लोग किससे करेंगे, टाइम से ही करेंगे. होल्ड ऑन. Tense come in 3 parts, in 3 tenses: past tense, present tense and future tense. The past is used to describe things that have already happened earlier that day, etc., etc. The present tense used to describe things that are happening right now, or the things that are continuous. Future tense describes the things that are yet to happen, later, tomorrow, next week, etc. I don't think I need to explain anything that was available there, but I'll still give it a try. ऐसी कोई चीज़ जो अभी हो रही है, something that is happening currently, like right now I'm talking, I'm breathing, I'm moving my hands, and what else happening, air is moving, I'm breathing, whatever it is, ये सारी जो currently हो रही है, this is present tense. Something that happened a long time ago, or a little in something in the past, is past tense. जैसे कल हुआ, अभी हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ, इसको past tense बोलते हैं. या
आई विल बी टीचिंग यू अ नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। तो ये जो कल जो होने वाला है दैट इज एक्सपेक्टेड बाय मी इज फ्यूचर टेंस। दैट इज हाउ इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप के टेंसेस डिवाइडेड है। विल बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस और उनके क्या रेफरेंस है, कैसे हम लोग यहाँ पे अपने पास चार्ट्स एंड ऑल अवेलेबल है जिसमें हम लोग टेंसेस के भी टाइप्स होते हैं। टेंसेस मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ये सब टाइप्स पढ़ेंगे और ये टाइप्स का यूजेज क्या है इंग्लिश में हम लोग वो पढ़ेंगे। Okay, so I guess today I'm going to complete our portion here only. I'll इसके बाद का जो part है tenses, it is going to take a little bit of time which will be focusing on the in the next lecture. If you do not understand any of it, you can easily contact me. So and that is it. I'm signing off. Thank you so much for attending my lecture.